Good morning, students. We are studying the chapter Money and Credit. In the previous portion of the chapter, or in the previous video, we have studied about loan activities of banks, and we are studying two cases. In the earlier video, we have studied the case of Salim. Okay, how he took credit and it helped him. Now, students, we are going to study Swapna's problem. Okay, so Swapna, a small farmer, grows groundnut on her 3 acres of land. So this is the case of a small farmer. Her name is Sapna. What she used to grow? Groundnut. Okay. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. So students, what she does, she is not taking a loan from a bank or not from the other person. She is taking a loan from a money lender. ठीक है, मनी लेंडर कौन होते हैं? जो पैसे देते हैं ऐसे ही, ठीक है, कर्ज देते हैं जो. ओके, hoping that her harvest would help her repay the loan. So she was hoping that because of her harvesting she would be able to repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by pests and the crop fails. But afterwards, what happened? Midway, बीच में क्या हुआ? That pests ने क्या किया कि फसल को अटैक कर दिया, सारी की सारी जो क्रॉप थी वो खराब हो गई. Though Sapna sprays her crops with expensive pesticides, it makes little difference. So she used pesticides also. But that was also of no use. The pesticide she was using, it didn't help her at all. She is unable to repay the money lender and the debt grows over the year to a large amount. So you know students, so she was not able to pay back her money. और आपको पता है कि जो बेसिक है उस पर क्या होगा, इंटरेस्ट लगता रहेगा. So it became a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. Then next year again she had to take a loan. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. So this year crop was normal, but the thing was that she was not able to repay the loan of the previous year. She is caught in debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. So she trapped in that, and she had to sell her a little land so that she would be able to repay the loan. In rural areas, the main demand for credit is for crop production. So students, in rural areas, why people used to take a loan? Because they want to meet the expenses for the crop production. Crop costs. Crop production involves considerable costs on seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment, etc. So you know afterwards, what is the requirement? What is the basic requirement in rural areas? Why they have to take up credit? So because of crop production, and in that crop production, what are the things that they are needed to buy? That is seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, and repair of equipment, etc. There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. So students, अब देखो यहाँ पे हमने अपनी पेमेंट लगा दी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाई. उसके बाद इतने टाइम के बाद वी विल बी एबल टू सेल अवर क्रॉप्स. तो अब जाके यहाँ हमें पैसे मिलेंगे. बीच में तो कोई पैसा कहीं भी नहीं है ना. Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay loan after harvest. Repayment of loan is crucially dependent on the income of the farming. So यहाँ पे they take loan इस जगह पे, ठीक है, इस टाइम. उसके बाद खाली then they repay. और ये repay भी कब होता है? अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक रहे इन 4 महीनों में. ओके, then in Swapna's case, the failure of the crop made loan repayment impossible. She had to sell part of the land to repay the loan. अब देखो यहाँ लोन लिया, इनके बीच में ऐसा कुछ हो गया कि लोन रीपे नहीं हो सका. Then she had to sell the land. Credit, instead of helping Swapna improve her earning, left her worse off. अब देखो क्या हुआ
कि सलीम को ने तो क्रेडिट लिया था, उसका फ़ायदा हुआ, बट स्वप्ना के साथ क्या हुआ? शी हैड टेकन द क्रेडिट बट व्हाट हैपेंड टू हर? हर कंडीशन बिकम वर्स. So this is the example of what is commonly called debt trap. So ये एक example किस चीज़ का है? जिसको debt trap भी कहते हैं. Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. So students, एक मूवी है मदर इंडिया, ठीक है? उस मूवी में भी क्या होता है, एक कर्ज लिया होता है उन्होंने, लाला जी से एक कर्ज लिया होता है और उनको खुद तो पढ़ना लिखना होता नहीं, बहुत गरीब लोग होते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, वो उसका इंटरेस्ट देते रहते हैं, बट जो बेसिक था वो वहीं का वहीं रहता है. सो इट बिकम्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू कम आउट फ्रॉम दैट डेब्ट ट्रैप. In one situation, credit helps to increase earnings and therefore the person is better off than before. अब देखो दोनों कंडीशंस आपने पढ़ी है ना. एक में तो कंडीशन क्या हुई, किसी इंसान की अच्छी हो गई, दूसरे में बहुत बेकार हो गई. बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेल्यूर, क्रेडिट पुशेज द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप. टू रीपे हर लोन शी हैज़ टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड. शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर. अब देख लो कि क्रेडिट लेने से क्या सिचुएशन उसकी ख़राब हो गई है. ओके अब क्या है, इसमें रिस्क तो होते ही हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टर्म्स ऑफ क्रेडिट. बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल आपके जनरल डे टू डे यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट. एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एंड, अब ये जो है लेट्स वर्क दीज आउट, ये तो आप अब खुद से करोगे, ठीक है. एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. अब देखो बेटा, जब हम कहीं से भी लोन लेते हैं सो उस एग्रीमेंट में ये चीज़ बिल्कुल क्वाइट क्लियर होती है कि जितना हम बेसिकली ले रहे हैं पैसा, ज़्यादा हमें उससे देना पड़ेगा बिकॉज इंटरेस्ट भी उस पर लगेगा, ठीक है. इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट लोन्स. अब जो पैसे देते हैं दे कैन डिमांड कोलेटरल. कोलेटरल होता है सिक्योरिटी. अब जैसे सपोज मैं कहीं से लोन लेने के लिए जा रही हूँ, जैसे हम बोलते नहीं कि अपने जेवर दे दिए हमने, ज़मीन हमने रख दी. अब जैसे मुझे ना 50 लाख रुपए चाहिए सपोज़, ठीक है, मेरे पास एक ज़मीन है, मैं उस ज़मीन के पेपर जाकर दे दूँगी उस पर्सन को जिससे मैं 50 लाख रुपए ले रही हूँ. सो दैट पेपर्स ऑफ दैट लैंड, दैट इज़ अ कोलेटरल, दैट इज़ अ सिक्योरिटी. ओके, कोलेटरल इज़ एन असेट दैट द बोरोवर ओन्स. जो क्रेडिट ले रहा है उस पर्सन का है वो कोलेटरल. क्या होता है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक्स, डेपॉजिट्स विद बैंक्स, ये क्या होता है, कोलेटरल. ओके, एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड. ओके, एक गारंटी की तरह है ये कि अगर हमने तुम्हारा पैसा नहीं भी दिया तो तुम हमारी चीज़ यूज़ कर सकते हो. इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द असेट और कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट. क्लियर है आपको इतना? इफ़ इन केस आई वॉन्ट बी एबल टू रीपे दैट 50 लाख रुपीज़, तो जिससे मैंने 50 लाख रुपीज़ लिए हैं, दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू सेल माई लैंड टू गेट हिज मनी बैक. प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, लाइफ स्टॉक्स आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलेटरल यूज फॉर बोरोइंग. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ये हैं बेसिकली टर्म्स ऑफ क्रेडिट. क्या हैं ये, अब इसमें हम देखेंगे. अ हाउस लोन. मेघा हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5 lakhs फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस. फाइन, अच्छे से सुनना इसको. द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज़ 15%. देखो लोन है 5 लाख का, एनुअल है इंटरेस्ट रेट 15%, सॉरी 12%, एंड द लोन इज़ टू बी रीपेड इन 10 years इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स. अब क्या करना है, 10 साल तक मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी है, ठीक है, ये डिसाइड हो गया तो इतने में बैंक का लोन उतर जाएगा. मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट शेयरिंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड हर सैलरी बिफोर द बैंक एग्री टू गिव हर द लोन. अब ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे डिपॉजिट करवाई. द बैंक रिटेन्ड एज कोलेटरल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस विच विल बी रिटर्न टू मेघा ओनली व्हेन शी रीपेज द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट. तो नए हाउस के पेपर्स किसके पास है, बैंक्स के पास है कोलेटरल के लिए. अब आपने ये फिल करना है. देखो लोन अमाउंट इन रुपीज़ दैट इज़ 5 lakhs, ड्यूरेशन ऑफ लोन दैट इज़ 10 years, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये देखो बैंक ये डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी, ठीक है. इंटरेस्ट रेट दैट इज़ 12%. मोड ऑफ रीपेमेंट, क्या है मोड ऑफ रीपेमेंट,
मंथली इंस्टॉलमेंट्स. कोलेटरल क्या है? पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस. ओके स्टूडेंट्स, ये आप खुद से फिल करोगे. फाइन. So students, up to here only we will study today. In the next video we will take up the rest of the chapter. Revise the chapter thoroughly. Thank you. Have a nice day.